know, plants are autotrophs. Auto, self-trophic nutrition means they can take care of their own nutrition. How? By photosynthesis. What is photosynthesis? Photo, light, synthesis, making. So they can create, they can synthesize using light energy. Where does the light come from? The light comes from sun. So photosynthesis is the process by which plants prepare food. Food in which form? Glucose. So they prepare food using what are the raw materials? Carbon dioxide and water. As you can see in the equation, carbon dioxide and water in presence of sunlight, because that's the energy source, and chlorophyll, because that is the pigment which is going to harness sunlight, which is going to absorb sunlight. Now the food that is prepared is glucose. Polymer of glucose is starch, and starch comes under the category of carbohydrate. So in what form do they produce food? Glucose. Glucose is a monomer. बहुत सारे ग्लूकोज को एक साथ ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड्स तो वो बन जाएगा स्टार्च. और स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. मतलब जब भी आप कोई प्लांट प्रोडक्ट खाते हो, सीरियल्स खाते हो, ग्रेन्स खाते हो, तो उससे आपको क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है. ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज द बाई प्रोडक्ट. तो आपको सिर्फ ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन ऑल्सो इज available from plants. Now the process of photosynthesis, जो भी मैंने अभी आपको बताया, it can be simply expressed in the form of an equation. Which equation? Let us see. It's a very simple equation. 6 moles of carbon dioxide plus 12 moles of water in presence of sunlight and chlorophyll give you glucose plus 6 moles of water plus 6 moles of oxygen. अब यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला लर्न करना बहुत मुश्किल, बहुत आसान है. इट इज, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर CHO. ठीक है. और आप क्या लिखेंगे? 6 और 6 + 6 क्या होता है? 12. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत आसानी से याद रखेंगे. CHO 6 and 6 + 6 is 12. You have to remember the equation very nicely in a balanced form. Now let us break down this process of photosynthesis in 3 main steps. पहला स्टेप क्या रहेगा? Absorption of light energy by chlorophyll. क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से आएगी? सनलाइट से. सनलाइट तो सबके लिए अवेलेबल है, तो सब लोग फोटोसिंथेसिस कर लेंगे? नहीं. Only those plants, only those creatures which have chlorophyll, क्योंकि sunlight absorb करने का काम सिर्फ chlorophyll कर सकता है. तो step number 1, absorption of light energy by chlorophyll. अब क्या करना है ये लाइट एनर्जी का? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में. जो ग्लूकोज सिंथेसाइज किया ना, उससे हमको किस तरह की एनर्जी मिलती है? केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी मतलब energy that is stored in the form of chemical bonds. So now light energy has to be converted to chemical energy. How? By splitting up water molecules. ये जो water molecules यहाँ पे utilize हुए हैं as a reactant, they will be split up. So water, as you can see, is made up of hydrogen and oxygen. We will split them up into hydrogen and oxygen. Oxygen is released in the form of molecular oxygen, as you see here. What happens to this hydrogen? Hydrogen is used for reduction. Remember your first chapter, you studied 2 types of reactions, oxidation, reduction. Reduction का मतलब क्या था? Reduction का मतलब था adding of hydrogen or removing of oxygen. Let me use my view board to explain this oxidation and reduction. Revise भी हो जाएगा इस बहाने आपका oxidation and reduction. So, 2 things that we need to know that are taking place very frequently in living system is oxidation and reduction. So, I am more concerned about reduction now. Reduction is either removing of
I'm sorry, it is either removing of oxygen or adding of hydrogen. Oxidation is opposite. It is adding of oxygen or removing of hydrogen. What is taking place here? It is reduction. Reduction of what? Reduction of carbon dioxide. तो अब कार्बन डाइऑक्साइड में हमको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा. तो हाइड्रोजन ऐड कर दो. कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे? Ultimately you want to synthesize glucose, so we will add 12 hydrogens over here. देखो everything is so logical. हमको यहाँ पे 12 हाइड्रोजन ऐड करने हैं. So यहाँ पे अगर 12 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 6 6 12. तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होंगे? 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होंगे. और क्योंकि हमको 12 हाइड्रोजन चाहिए है, वाटर कितने यूटिलाइज होंगे? सो वाटर यूटिलाइज एक्चुअली हाइड्रोजन सिर्फ ऐड नहीं हो रहे, इट इज रिलीजिंग वाटर ऑल्सो. सो वी नीड 12 मोल्स ऑफ वाटर. तो 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करने के लिए 12 मोल्स ऑफ वाटर का क्या करना पड़ेगा? फोटोलाइसिस करना पड़ेगा. और ये फोटोलाइसिस से क्या मिलेगा? ये फोटोलाइसिस से H plus मिलेंगे which go for reduction. Oxygen मिलेगा which is released as the byproduct of photosynthesis. I hope the reaction is very very clear. And whatever reduction product that you get, what is the reduction product? The reduction product is glucose, which is stored in the form of starch in plants. I hope the slide is clear. I'll go to the next one. Same thing explained in a diagrammatic manner. What you see here is energy coming from sun in the form of sunlight. Chlorophyll is present in green plants, in green leaves. Carbon dioxide is available in atmosphere. Carbon dioxide diffuses into the leaves. How? We will see in the next slide. And using carbon dioxide and water. Water कहाँ से आया? It is absorbed by the root system and it is transported by xylem. So using carbon dioxide and water, chlorophyll converts solar energy into chemical energy, forming glucose and also releasing oxygen at the same time. That is photosynthesis in a nutshell. अब मैंने अभी आपको बताया क्लोरोफिल के बारे में. तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? देखो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन लीव्स. यस मैम वैशाली को एंड करो ना, वो कब से ट्राई कर रही है. ओके. सो वी वर टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल के क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है. सो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट. इट इज प्रेजेंट इन लीव्स. कैसे पता चलेगा इट इज प्रेजेंट इन लीव्स? तो एक लीव ले लो, उसका सेक्शन लो. सेक्शन लो मतलब ब्लेड लेके आपको बहुत ही थिन लीव्स के सेक्शन काटने हैं और फिर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है. जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिखेगा? ये दिखेगा. ठीक है. तो जब आप लीफ को ऑब्जर्व करते हो, व्हाट डू यू सी? यू सी सम टिश्यूज. विच टिश्यूज? यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज एपिडर्मिस. सो इट विल हैव अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस. और क्या है? ये जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर एक लेयर है जिसको बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल, जो क्या काम करेगा? वाटर को कंजर्व करने का काम करेगा. पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट नहीं हो जाना चाहिए बिकॉज द प्लांट्स आर ऑलवेज इन सनलाइट. फिर सो सेम थिंग यू हैव ऑन लोअर एपिडर्मिस ऑल्सो. बीच में क्या है? बीच में जो टिश्यू है उसको बोलते हैं मीजोफिल. अब मीजोफिल दो तरह का है, पैलिसेड मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल. Palisade mesophil is a compactly arranged tissue. देखो यहाँ एक के बाद एक cells हैं. There is no space. लेकिन spongy mesophil is a loosely arranged tissue. देखो यहाँ पे बहुत सारी air space है. तो mesophil में जो cells हैं they are of two types, palisade mesophil, spongy mesophil. और ये mesophil के अंदर chloroplast है और ये chloroplast के अंदर chlorophyll है. इसके अलावा और क्या है लीफ में? देखो यहाँ पे गार्ड सेल्स हैं. गार्ड सेल्स के बीच में एक ओपनिंग है जिस ओपनिंग का नाम है स्टोमा. तो आपने सुना होगा स्टोमेटा के बारे में. सॉरी, लेट मी गेट बैक टू स्लाइड. आई डोंट वांट नोट्स. ओके. सो
आपने सुना होगा स्टोमेटा के बारे में. स्टोमेटा आर ओपनिंग इन द लीव्स. ऐसा नहीं है सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में ही होते हैं, अपर एपिडर्मिस में भी होते हैं, बट नंबर ऑफ स्टोमेटा in lower epidermis is more than in higher upper epidermis, and this opening called stomata is guarded by guard cells. guard cells के अंदर भी chloroplast है. so I hope the structure of leaf is clear. अब इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं कि मैंने आपको बोला कि इसके अंदर स्पॉन्जी मीजोफिल और कॉम्पैक्ट मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल वाले सेल्स हैं. और सेल्स के अंदर क्या है, देखो ये सेल को हमने मैग्नीफाई करके देखा, तो बिकॉज इट इज अ प्लांट सेल इट विल हैव सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल वॉल के अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन, एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होगा. न्यूक्लियस इज पुश्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी बिकॉज ऑफ वैक्यूल. साइटोप्लाज्म है ऑल ओवर द सेल, और वो सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है. अब क्लोरोप्लास्ट को मैग्नीफाई करके देखते हैं. सो व्हाट हैव यू सीन, देखो पहले आपने देखा लीफ, लीफ के अंदर सेल, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट. अब हम सेल ऑर्गेनल लेवल पे चले गए. क्लोरोप्लास्ट कैसा है, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल. इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है. और क्या है अंदर, देयर इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. दो मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है जिसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. और क्या है अंदर, स्ट्रोमा है. स्ट्रोमा मतलब ये फ्लूइड पार्ट. और कौन सा पार्ट है, स्ट्रॉन्ग, दैट इज ग्रेना पार्ट है. ग्रेना इज द सॉलिड पार्ट. तो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर ग्रेना है. प्लूरल इज ग्रेना, सिंगुलर इज ग्रैनम. अब ग्रेना किसका बना हुआ है, ग्रैनम किसका बना हुआ है, ग्रैनम बना हुआ है बहुत सारे थाइलेकॉइड्स का. बहुत सारे थाइलेकॉइड्स एक के ऊपर एक स्टैक किए हुए हैं. जो आपको यहाँ दिख रहे हैं वो थाइलेकॉइड है, और थाइलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल है. ओके, सो इट गोज लाइक दिस. Chlorophyll is present in thylakoid. Thylakoid are stacked over one another to produce granum. Many granum together are known as grana. Grana is present in an aqueous fluid known as stroma, and stroma is present in inner membrane, inside the membrane, inner membrane of chloroplast. अब यहाँ पे देखिए, एक ग्रैनम इज इंटरकनेक्टेड टू द अदर ग्रैनम थ्रू अ system of lamellae. Lamellae का मतलब होता है membranes. So it is connected to each other through lamellae. और thylakoid के अंदर क्या है, suppose this is thylakoid, तो इसके अंदर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं lumen, and inside the lumen of thylakoid chlorophyll are present. I hope I have made it clear. In the next slide what you see is you see stomata. अब मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर बाहर आता है. कैसे, बाय अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन कहाँ से हो रहा है, देयर हैज टू बी अ प्लेस फॉर डिफ्यूजन. सो व्हाट इज द प्लेस फॉर डिफ्यूजन, स्टोमेटा. इट इज द स्टोमेटा दैट opens to allow carbon dioxide to enter the leaf and water vapor to leave. अब देखो हमेशा ऐसे ही जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग इन एंड वाटर इज कमिंग आउट. लेट अस नोट दिस डाउन. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है, इन द लीफ. क्यों हमेशा इन द लीफ, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के बाहर नहीं आ सकता, इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इज हाई. लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इज लो. तो वो हमेशा कहाँ डिफ्यूज होगा, फ्रॉम हाई टू लो. तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कहाँ जाएगा, फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनसाइड द लीफ बाय स्टोमेटा. व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना है 21%, लेकिन लीफ के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन और भी ज्यादा बिल्डअप हो जाता है. इसलिए ऑक्सीजन हमेशा कहाँ जाएगा, इट विल कम आउट फ्रॉम लीफ एंड इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर. Realize the value of oxygen when you are on ventilator. COVID is everywhere और
भगवान ना करे कभी आपको जरूरत पड़े, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी वेंटिलेटर की, एंड व्हेन यू पे द बिल फॉर द ऑक्सीजन दैट यू आर इनहेलिंग विद द हेल्प ऑफ वेंटिलेटर, आपको समझ में आएगा कि प्लांट्स आपको फ्री में कितना कुछ देते हैं. सो यू शुड grow lot and lot of plants. Okay, another thing that we need to talk about is water. तो water vapor भी कहाँ से कहाँ आएगा? लीफ से एटमॉस्फेयर में. ये सारा खेल किसका है? डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा कौन सी चीज कहाँ से कहाँ जाएगी? Everything is decided by concentration. Always from higher concentration to lower concentration. और प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन. So see, things are so well managed with such a simple mechanism. So same thing is shown here. ये जो फिगर है बहुत ही सिंपल फिगर है. इसमें अगेन देयर इज अ TS, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ. तो अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, ये मीजोफिल सेल्स है, ये कॉम्पैक्ट मीजोफिल है, ये स्पॉन्जी मीजोफिल है. यहाँ पे हाई वाटर वेपर कंटेंट है, तो स्टोमेटा से वो वाटर वेपर बाहर आ गई. यहाँ पे एटमॉस्फेयर में हाई कार्बन डाइऑक्साइड कम कंटेंट है, सेल में कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ गया? बाहर से अंदर. आई होप आई हैव मेड इट क्लियर. ओके, अब स्टोमेटा को ध्यान से पढ़ते हैं. तो मैंने आपको बोला कि डिफ्यूजन कहाँ से हो रहा है? स्टोमेटा से हो रहा है. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स में प्रेजेंट है, ऑन बोथ अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस. पर आप याद रखेंगे लोअर एपिडर्मिस में नंबर ऑफ स्टोमेटा इज मोर. क्यों ऐसा? अपर एपिडर्मिस में क्यों कम है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो प्रेशियस वाटर रूट सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है, जाइलम ने ट्रांसपोर्ट किया है, वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाए. तो इवेपोरेशन को कम करने के लिए, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए stomata number is more on the lower side and less on the upper epidermis. Okay, then what is stomata? As you can see here, this is a real picture of stomata from TS of leaf. So they are nothing but small openings, and these openings are guarded by cells which are so rightly known as guard cells. तो यहाँ पे देखिए एक स्टोमा है जिसका मतलब है ओपनिंग, उसके आसपास जो सेल्स हैं वो है गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, सब कुछ है. अब यहाँ पे देखिए गार्ड सेल की जो वॉल है, इनर वॉल एंड आउटर वॉल, ये है इनर वॉल और ये है आउटर वॉल. ध्यान से देखिए राइट हैंड साइड पे, इनर वॉल इज थिक एंड आउटर वॉल इज थिन. क्यों ऐसा है? इनर वॉल इज थिक एंड आउटर वॉल इज थिक. क्योंकि अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके पास दो बलून्स हैं. दो बलून्स जब उनमें कुछ नहीं भरा हुआ है, ना हवा भरी हुई है ना पानी भरी हुई है, उनको आपने एक साथ रखा है, तो क्या होगा? दो बलून्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगी. वो बलून्स ऐसे दिखेंगे आपको. दो बलून्स ऐसे एक दूसरे के आसपास रखे हुए हैं, देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम. अब मैं क्या करूंगी? वो बलून्स में पानी भर दूंगी. सो व्हेन आई फिल वाटर इन माय बलून्स, दे बिकम टर्जिड. टर्जिड का मतलब क्या है? टर्जिड का मतलब है कि वो जो बलून्स थे अब वो कड़क हो गए. अब क्योंकि वो कड़क हो गए और क्योंकि उनकी इनर वॉल थिक है, आउटर वॉल थिन है, उनकी इनर वॉल स्ट्रेच हो गई. ऐसे स्ट्रेच हो गई कि ये जो पोर है ये पोर खुल गया. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, water diffuses into the guard cells and it causes them to open. यहाँ पे देखो water कहाँ जा रहा है? Water is going inside the guard cells. When water goes inside the guard cells become turgid and then the stomata is open. When stomata is open, carbon dioxide can go inside and photosynthesis can take place. लेकिन अगर आपने अपने पौधों में पानी नहीं डाला तो क्या हो जाएगा? तो गार्ड सेल्स में से पानी बाहर चला जाएगा. आफ्टर ऑल इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन. तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस आउटसाइड, स्टोमेटा में से पानी बाहर चला जाएगा और वो जो सेल्स थे वो कैसे हो जाएंगे? वो फ्लैसिड हो जाएंगे. हिंदी में सिंपल भाषा में वो पिचक जाएंगे.
So when they are flaccid, the stomatal pore is closed. When the stomatal pore is closed, carbon dioxide cannot diffuse inside. And when the carbon dioxide cannot diffuse inside, तो क्या होगा? तो photosynthesis रुक जाएगा. तो आपको ये समझना है कि water stress is a very big stress for plant. अगर आप अपने plants को watered नहीं रखेंगे तो photosynthesis नहीं हो पाएगा. I hope you understand opening and closing of stomata. आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए और एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. एक्सप्लेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. या तो ऐसा एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, 2 मार्क्स. तो इन दैट केस आपको क्या क्या लेबल करना है? गार्ड सेल्स, उसके अंदर का स्टोमेटल पोर और इसके आजू बाजू जो ये ब्राउन कलर के सेल्स दिख रहे हैं इनको एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं, उनको भी आपको लेबल करना है. ओके, सो दीज आर अगेन द स्टोमेटा दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये वाली स्लाइड में देखिए, इट शोज स्टोमेटा व्हेन दे आर ओपन, what happens to the water is entering inside the guard cells and the cells are turgid. What happens when water is less? It comes out of the guard cells become flaccid, stomatal pore is closed. Okay, please stop the recording. We just said that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Prove कैसे करेंगे? You can do an activity to prove कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है. कैसे? आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है. कौन सा वाला प्लांट लेना है? क्रोटॉन प्लांट लेना है. क्रोटॉन किस तरह का प्लांट है? क्रोटॉन इस तरह का प्लांट है जिसके लीव्स वेरीगेटेड होते हैं. What do I mean by variegated leaf? Let me use my view board to explain what is variegatory leaf. Just a minute. Okay. So what is variegated leaf? Understand this? Variegated, इसका मतलब ये जो लीफ है ये पूरी तरह ग्रीन नहीं है. ये लीफ में येलो ऑरेंज पैचेस आपको देखने मिलेंगे. So this plant has leaf which is not completely green. थोड़ा पार्ट इसमें ग्रीन है, थोड़ा पार्ट इसमें येलो है और थोड़ा पार्ट इसमें ऑरेंज है. सो इस तरह के लीफ को जो सिर्फ ग्रीन कलर का नहीं है उसको हम वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं. इसमें आपको ओके, आई डोंट हैव ऑरेंज कलर इन मार्कर. सो इसमें ऑरेंज इस तरह का जो लीफ है इसको आप बोलेंगे वेरीगेटेड लीफ. क्या करेंगे वेरीगेटेड लीफ का? सो क्रोटॉन प्लांट का आपने वेरीगेटेड लीफ ले लिया है. अब आप इसको डार्क रूम में रखेंगे फॉर 3 days. डार्क रूम में रखने से क्या अवेलेबल नहीं है? सनलाइट अवेलेबल नहीं है. सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? स्टार्च नहीं बनेगा. तो हमने ये प्लांट को 3 दिन के उपवास पे रख दिया. ठीक है. सो 3 दिन के उपवास के बाद क्या हुआ? 3 दिन के उपवास के बाद ये हुआ कि सुबह उठ के सबसे पहले खाना दे दो. 3 दिन के उपवास के बाद ये हुआ कि ऑल द स्टार्च इज यूज्ड अप. उसके अंदर जितना भी स्टार्च स्टोर्ड था वो सारा का सारा स्टार्च यूज हो गया. अब हम इसको खाना देंगे. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. तो इसको सनलाइट में रखेंगे 6 आवर्स के लिए. तो अब क्या हुआ? अब फोटोसिंथेसिस होगा, फिर से स्टार्च बनेगा. अब आपको ये पर्टिकुलर प्लांट में से एक लीफ तोड़ लेना है और लीफ तोड़ने के बाद क्या करना है? यू हैव टू मार्क द ग्रीन एरियाज ऑफ द लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर. मतलब क्या किया मैंने? लेट मी अगेन गेट माय बोर्ड. मैंने एक शीट ऑफ पेपर लिया. So I've taken a sheet of paper. उसके ऊपर मैंने अपना लीफ रखा और ये लीफ में जहां जहां पे भी कौन से एरियाज मार्क करने हैं मुझे? आई हैव टू मार्क द एरियाज, ग्रीन एरियाज ऑन द शीट ऑफ पेपर. सो जहां जहां पर भी ग्रीन था तो मैंने ग्रीन एरियाज
पेपर पे मार्क कर लिए कि यहाँ पर ग्रीन एरियाज थे. ओके, आई हैव द ग्रीन एरियाज ऑन माय पेपर. ओके, अब इस लीफ को मुझे क्या करना है? आई हैव टू डिप इट इन बॉइलिंग वाटर टू मेक इट सॉफ्ट. पानी उबालना है, उसमें लीफ को डाल दिया तो वो क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया. अब ये सेम लीफ को मुझे डालना है अल्कोहल में. अल्कोहल में डाल के आई हैव टू हीट इट इन वाटर बाथ टू डीकलराइज एंड रिमूव क्लोरोफिल. इस बात को अच्छे से समझते हैं. सो व्हाट डू आई हैव टू डू इज बेसिकली अल्कोहल क्या करेगा? अल्कोहल लीफ में से सारा क्लोरोफिल रिमूव कर देगा. पर आपको पता है कि अल्कोहल कैसा है? अल्कोहल इनफ्लेमेबल है, बहुत जल्दी से आग पकड़ता है. तो आई कैन नॉट यूज अल्कोहल डायरेक्टली ऑन फ्लेम, डेंजरस है. तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? मुझे वाटर बाथ बनाना पड़ेगा. कैसे बनाएंगे वाटर बाथ? मैंने एक बड़ा सा बीकर लिया, उसके अंदर पानी रखा, उसके अंदर मैंने एक और बीकर रखा और वो बीकर के अंदर अब मैंने अल्कोहल डाल दिया और अल्कोहल के अंदर मैंने अपना लीफ डाल दिया. अब मैं इसको हीट कर सकती हूँ. इट इज सेफ. तो मैंने लीफ को कैसे हीट किया? मैंने लीफ को अल्कोहल में हीट किया है इन अ वाटर बाथ. क्योंकि मैंने उसको अल्कोहल में हीट किया है, क्या हो जाएगा? इट बिकम्स डीकलराइज्ड. मतलब इसमें से क्या निकल गया? इसमें से सारा क्लोरोफिल निकल गया. लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट. सो आई हैव रिमूव्ड द क्लोरोफिल. उसके बाद मुझे क्या करना है? वॉश द लीफ इन वाटर. अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे स्टार्च कहाँ कहाँ सिंथेसाइज हुआ था. तो अगर मुझे स्टार्च का प्रेजेंस चेक करना है, इफ आई वांट टू चेक प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो उसके लिए एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं आयोडीन टेस्ट. तो आयोडीन टेस्ट का मतलब क्या है? आयोडीन टेस्ट का मतलब ये है स्टार्च प्लस आयोडीन गिव्स यू ब्लू ब्लैक कलर. मतलब जहां पर भी आयोडीन प्रेजेंट है, जहां पर भी स्टार्च प्रेजेंट है, जैसे ही वहां पे आयोडीन गिरा, वो कैसे कलर का बन जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर का बन जाएगा. आयोडीन इटसेल्फ इज येलो, लेकिन एंड स्टार्च इटसेल्फ इज व्हाइट. तो व्हाइट स्टार्च जब येलो आयोडीन के साथ मिक्स होता है तो क्या बन जाता है? ब्लू ब्लैक कलर बन जाता है. आप देखेंगे कि ये आपका डीकलराइज्ड लीफ है, आपने सब जगह आयोडीन डाल दिया. You have covered all the entire surface of the leaf with iodine. थोड़ी देर में कहीं कहीं पर आपको ब्लू ब्लैक पैचेस नजर आएंगे. कहाँ पे ब्लू ब्लैक पैचेस नजर आएंगे आपको? आपको ब्लू ब्लैक पैचेस इतना ब्लू के वो it will appear black. So it almost appears black. ये आपको कहाँ नजर आएंगे? ये आपको वहीं पे नजर आएंगे जहां पे ग्रीन कलर का क्लोरोफिल प्रेजेंट था. तो देखो, ब्लू ब्लैक कलर सिर्फ वही मिला जहां पे क्लोरोफिल था. इसका मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस वही हुआ जहां पे क्लोरोफिल था. तो इससे आपने क्या कंक्लूड किया? इससे आपने ये कंक्लूड किया कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर photosynthesis. Where is my presentation? Is it gone? Okay, if it is gone, we will take it out again. So we have just done an activity, performed an activity to prove that chlorophyll is required for photosynthesis. It is necessary for photosynthesis. I hope the activity is clear. एक और एक्टिविटी करेंगे अब. This time we will show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. उसके लिए हमने क्या करना है? So if I want to show कि carbon dioxide is necessary, हम 2 potted plant लेंगे. कितने potted plant? 2. जरूरी नहीं है क्रोटॉन लो, कोई भी ले सकते हो और इसको डार्क रूम में रख देंगे
3 दिन के लिए, फिर से उपवास पे डाल देंगे प्लांट को। इससे क्या होगा, जो भी स्टार्च था प्लांट के अंदर वो सारा यूज्ड अप हो जाएगा। अब हम 2 ग्लास प्लेट्स लेंगे एंड वी विल कीप अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नियर वन प्लांट टू ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में कि करना क्या है। मैंने 2 प्लांट्स लिए हैं। लेट मी मेक 2 प्लांट्स, 2 पॉटेड प्लांट्स। तो मैंने 2 पॉटेड प्लांट्स लिए हैं। वन एंड 2। ओके, अब इनको मैं बेल जार के अंदर रखने वाली हूँ। बेल जार बना देते हैं। वी कैन यूज अ डिफरेंट कलर। तो यहाँ ये एक बेल जार, ये दूसरा बेल जार। दोनों प्लांट्स को हमने कवर कर दिया है बेल जार से, जो कांच का बना हुआ होता है। एक में हमने क्या किया, एक प्लांट के अंदर हमने एक वॉच ग्लास लिया, छोटा सा कांच का ग्लास, ग्लास मतलब ये शेप का ग्लास होता है वो, और उसके अंदर हमने डाल दिया है, क्या डाला है, KOH सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। क्या खासियत है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड will absorb all carbon dioxide। तो अब ये जो प्लांट है, let us name this as A and let us name this as B। A को सब कुछ मिल रहा है क्योंकि बेल जार तो कांच का बना हुआ है ना, ट्रांसपेरेंट है। तो अब इसको सनलाइट भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड अंदर था, क्लोरोफिल ऑलरेडी है, वाटर ऑलरेडी है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इनसाइड द बेल जार। तो यहाँ पे सिंस एवरीथिंग इज अवेलेबल, फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है स्टार्च। तो यहाँ पे स्टार्च बनना चाहिए। स्टार्च बना या नहीं बना कैसे टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट से टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे, सनलाइट है, बिल्कुल है, क्लोरोफिल यस प्रेजेंट, वाटर यस प्रेजेंट, सिर्फ क्या नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रेजेंट। व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रेजेंट? क्योंकि हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस, स्टार्च इज नॉट मेड। पर इसको टेस्ट तो करना पड़ेगा। तो टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से एक लीफ ले लेंगे और यहाँ से भी एक लीफ ले लेंगे। सो नाउ आई हैव गॉट 2 लीव्स। This is the leaf from A, this is the leaf from B, sorry। अब इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो आयोडीन टेस्ट में क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट में लीफ पे आयोडीन डालेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर मिला, कहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला। तो यू विल सी फॉर योरसेल्फ कि इन A blue black color appears and in B blue black color is absent। तो ब्लू ब्लैक कलर आपको कहाँ देखने मिला, ए में देखने मिला, कहाँ देखने नहीं मिला, बी में देखने नहीं मिला। तो मैं क्या कह सकती हूँ, आई कैन से दैट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड वॉज नॉट प्रेजेंट इन बी, photosynthesis did not take place and starch was not prepared। So same thing is written here, carbon dioxide is necessary for photosynthesis। I hope it is clear. Please stop the recording.